which I would like to confirm with you before we go ahead. Thereafter, you can start asking your set of questions. So I have been told Arzu is at Prudence and she's just moved into class 11th, right? Yes, exactly. Okay. And probably she had 85% in class 9th and probably term 1 was 70% in class 10th, right? Right. Great. Okay. So fine. So this is what I know about her. But now one thing that I would like to know is that what is the stream that the child has chosen? So she wants to go in marketing sector. Okay. Or probably she wants to do an entrepreneurship course of entrepreneurship. Achha. So in that way, we don't have much knowledge about this line No, because no. I'm a beta computer. So I had science stream, and she wants to go with the commerce with maths. Commerce with maths stream. Wonderful. Her final target is to do entrepreneurship. Now, what is it exactly? You must be knowing better. Sure. Hmm. Perfect. So Arzu is sitting next to you, ma'am, right? Yes, ma'am. Yes, sir. Achha. Hi. Hello, sir. So we are looking at the future Tata, Ambani, Birla, whatever you might call it. Is it? Okay. Any plans of business already in your mind? So branding might be. नहीं, I'm saying that कोई business plan already तुम्हारे mind में चल रहा है या नहीं? No, sir. Not really. ठीक है. So fact is that if you're looking at doing an entrepreneurship program, you are choosing the correct stream, which is commerce plus maths. Okay. Now, दो चीजें यहाँ पर very important. One, if you're choosing maths, make sure that you're being given standard maths and not applied maths. Oh, she's having standard maths only. Great. So that is question number one. Number two, your performance in terms of academics is going to be extremely important in the next 2 years. Okay. So marks from class 10th, 11th, and 12th, all three are important for admissions both in India as well as abroad. Okay. So make that very clear. Some people might tell you that 11th is just to have fun and there is no much of importance. That's not true. That's not true. Right? So if you're looking at entrepreneurship as a program, so I want everybody to understand कि होता क्या है. Majorly, देखो दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं. एक होता है जनरल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, जहां हमें ये सिखा दिया जाता है कि यार कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या फंक्शन होता है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, टीम्स कैसे बनाई जाती है, बिजनेस की प्लानिंग कैसे करते हैं, all of that. But when you look at a little different program, entrepreneurship, इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव एक ऐसे इंसान को बनाना है जो जिंदगी में जॉब नहीं ढूंढेगा, राइट? वो जॉब्स देगा लोगों को. Yes, yes. That is the entire idea of the program, right? So obviously जो सारी चीजें बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में पढ़ाई जाएंगी वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ाई जाएगी, पर बार बार आपको ये चीज समझाया जाएगा कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे, बेसिक आइडिया का स्क्रैच कहाँ से स्टार्ट होता है, फंडिंग कैसे लेकर आएंगे आप. ठीक है, जैसे आपने शार्क टैंक देखा है कभी? Shark Tank. नहीं No, देखा? sir. इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम. अब इस साल तो इंडिया वाला वर्जन भी हुआ था. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है कि लोग अपने अपने बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं और वहां 5 डिसीजन मेकर्स होते हैं. उन 5 डिसीजन मेकर को शार्क बोला जाता है. तो वो पहले आपके आइडिया सुनेंगे और अगर आइडिया आपका बहुत अच्छा है तो फिर वो आपको हो सकता है फंडिंग दे देंगे, यानी कि आपको पैसे दे देंगे ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको. तो आप चाहो तो इस साल का शार्क टैंक आप टेलीविजन पे ओटीटी पे दोबारा देख सकते हो. ओके, इट्स अ ग्रेट आइडिया. मतलब थोड़ा देर देखोगे ना तो एकदम ऐसा लगेगा कि छोड़ा नहीं जा रहा है. इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम दैट वाज हेल्ड.
So that was one, और ये यूएस से प्रोग्राम आया था, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम टू लुक एट. सो ये चीज थोड़ा सा चेक कर लो, राइट? बाकी आप मुझे एक चीज बताओ, दैट तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे बिजनेस करना है या मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है? सो मैंने थोड़ा सा सर्च किया था तो वहां से. सर्च किया था, ओके. सर्च क्या मिला आपको सर्च करने पर? सर्च करने पर सर एक्चुअली मुझे ना वो करना था, ब्रांडिंग और डिजाइनिंग. ओके. तो ब्रांडिंग और डिजाइनिंग वो थोड़ी अलग चीज है, और जो हम अभी बात कर रहे हैं ना ये थोड़ी अलग चीज है, राइट? सो अगर जैसे आप ब्रांडिंग एंड डिजाइनिंग आप बोल रहे हो, तो वो आप क्या समझते हो? व्हाट इज ब्रांडिंग एंड डिजाइनिंग एग्जैक्टली टू यू? Branding to create your own brand and designing to design your products. ये कोई लाइव एग्जांपल दे सकते हो? मतलब क्या एग्जैक्टली आप कहना चाह रहे हो? दैट्स आई वांट टू अंडरस्टैंड द क्लैरिटी. So do you know Kylie Jenner? आई हैव हर्ड ऑफ इट, या. She's an entrepreneur and she has her own makeup and skincare brand. Right. Okay. So you want to do something of that sort? Yes, sir. That's not a branding and advertising kind of a program. You know, she owns an entire company, an entire product line, okay, an entire idea. That is more of entrepreneurship. So आगे से आप ये मत कहना कि आप सिर्फ ब्रांडिंग में इंटरेस्टेड हो. You are interested in the entire thing, right? That how did she create that brand, if I am not wrong? Yes, sir. तो ये जानना है ना कि वो ब्रांड बना कैसे, Correct, sir. Correct. है ना? सो इस जर्नी को, इस सफर को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. दैट हाउ डू वी क्रिएट ब्रांड्स, ठीक है? इनफैक्ट इस पे ना कई सारी बुक्स भी आती हैं, दैट हाउ डू यू क्रिएट सुपर ब्रांड्स, और हाउ डू यू क्रिएट अ ब्रांड, और हाउ डू यू मेक अ ब्रांड आउट ऑफ योरसेल्फ. तो ऐसे बहुत सारे बुक्स भी आते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो. सो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि मैं इस चीज को शुरू कैसे करूंगा, आइडिया कहाँ से लाऊंगा, क्या आइडिया आजकल चल रहा है, क्या आइडिया आगे चल सकता है, यूनिक आइडिया क्या होगा, मेरे साथ कौन काम करेंगे, किस तरह के लोगों की मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं किस तरह टॉप पर पहुंचूंगी, व्हाट इज माय स्टोरी ऑफ सक्सेस, कितने साल लगेंगे, और किस तरह का पैसा लगेगा, कब कब कितना पैसा लगेगा, किस किस जगह स्पेंड करना है. सो बहुत डिटेल्ड लॉन्ग प्लानिंग होती है इसकी. तो ये एकदम से तो किसी को आएगा नहीं, ऑब्वियसली. अभी आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक्स कुछ इधर उधर से पता है. सो उसको प्रोसेस के तरीके से, एकदम प्रोसेस्ड वे में पढ़ना होता है. सो दैट पढ़ाई इज नॉर्मली नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ऑडिटर बनना चाहता है, कोई टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहता है, तो हम उसको बोलते हैं ना कि आप जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो, तो आप ये सारी चीजें सीख जाओगे. वैसे ही कोई बोलता है कि मुझे ना बहुत अच्छा मैनेजर बनना है, मुझे सीईओ बनना है, सीएफओ बनना है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप जाकर जनरल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कर लो. और जब कोई बोलता है कि नहीं मुझे अपना ब्रांड बनाना है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कर लो. ओके, सो दैट इज द आइडिया. आई होप यू अंडरस्टूड अ लिटिल बिट, राइट? Yes, sir. चलो, अब बात आती है कि हम कहाँ से पढ़े, कहाँ अच्छी पढ़ाई होती है. दैट्स अ बिग क्वेश्चन, right? So my next question is that where do you want to study? You want to study it in India? You want to study outside India? Where do you want to? वो उनको देखो, अभी तुम बताओ. So I personally want to study abroad, but that depends on my marks. True. और फर्स्ट टर्म के मार्क्स अच्छे हैं नहीं, ये आप जानते हो. Yes, sir. सेकंड टर्म में कैसा आएगा? So मैंने तो अपना बेस्ट दिया है. और तुम फर्स्ट टर्म के बाद आकर तो ये नहीं कहा था तुमने कि मैंने अपना बेस्ट दिया है? नहीं सर. हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कहीं तुम डिप्लोमेट तो नहीं हो, डिप्लोमेट नहीं कर रही हो. तो इस बार सच बताओ, कुछ तो गट फील होगा कि इतना तो आ जाएगा, क्योंकि अब तो बोर्ड दिया है प्रॉपर. So actually इस बार मुझे ना पता नहीं है, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स इंक्लूड होंगे, ऐड होंगे, और फिर उसके बाद इंटरनल असेसमेंट भी होगी, इसलिए मुझे पता नहीं है. 90 टच होगा?
पता नहीं। कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, आ ही जाएगा, ठीक है। और जैसा भी होगा इतना चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया, अब हमें बिल्कुल। आगे का सोचना है, ठीक है ना। सो अगर 80 आएगा तो भी अच्छा, 75 आएगा तो भी अच्छा, 90 आएगा तो और भी अच्छा, फिनिश्ड स्टोरी, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि अगर हमको अब्रॉड का सोचना है, उसे सोचने से पहले हम लोगों को 1-2 चीजों पर यस नो कर लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज है बजट्स, बिकॉज जब भी हम बाहर पढ़ने का सोचेंगे ना, सबसे बड़ा सवाल होता है खर्चे का। तो ये अब पापा और मम्मी ही आंसर कर पाएंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा कि आप दोनों को मैं कंट्री बाय कंट्री टोटल जो कॉस्ट आता है पढ़ाई का, क्योंकि अंडरग्रेड है ना, तो अंडरग्रेड 3 साल या फिर 4 साल का होता है, कंट्रीज में 3 और कुछ कंट्रीज में 4 साल होता है, तो आपका खर्चा जो है वो काफी बड़ा खर्चा है। सो जो लोएस्ट खर्चा होता है खाना पीना और पढ़ाई मिलाकर, उसके लिए कंट्री है नेदरलैंड्स, दैट्स इन यूरोप। उसमें आपका खर्चा आएगा एनीथिंग बिटवीन 60 lakhs to 70 lakhs, and this is all inclusive, This is for full course or annually? full course of 3 years. Full course of 3 years. ये लिखना mention करो। ये लो। Full course of 3 years, 60 to 70 lakhs in Netherlands. Yeah, inclusive of your tuition as well as your living cost. तो जब हम ट्यूशन और लिविंग दोनों को हम जोड़ते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस। तो अब मैं आपको सारे यूनिवर्सिटीज के, सारे कंट्रीज के कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कंट्री आपको टारगेट कर सकते हो आप, वो हो सकता है कनाडा। वहां पर आपका कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस जो है वो 80 लाख से 1.25 करोड़ के बीच में आएगा, ठीक है। कॉलेज डिपेंड करते हैं सर, जो आपने 80 to 125 पे बोला है, तो वो कॉलेजेस डिपेंड करते हैं। एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल आपने सही समझा है, बिकॉज जो थोड़ा लोअर रैंक यूनिवर्सिटी होगी उसकी ट्यूशन फी कम होगी, जितनी हायर रैंक यूनिवर्सिटीज होंगी उसकी हमेशा ट्यूशन फी ज्यादा होगी। ये आप 3 इयर्स का या 4 इयर्स का कोर्स? कनाडा इज 4 years, ओके, यूरोप इज 3 years। मतलब कंप्लीट कोर्स जो इसका 4 इयर्स का। मैंने जब आपको कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस बोला ना मैम, तो इसमें टोटल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी प्लस आपके लिविंग कॉस्ट दोनों को मिलाकर आपको बोला है 4 इयर्स का। 4 years का, ठीक है। सो 80 to 1.25 CR होता है अपना कनाडा में। अब जब हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, यानी कि अपना लंदन वाला जो एरिया है, वहां आपका खर्चा होता है 1.25 करोड़ to 1.5 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। एक और बहुत पॉपुलर कंट्री है, दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर विल कॉस्ट यू approximately 30 lakhs, 90 lakhs to 1 crore, okay, for a period of 3 years, ठीक है। और मैम अगर आप लिख रहे हो ना, तो इसको ना टैब्यूलर फॉर्मेट में कर लो। एक तरफ आप कंट्री लगा दो, एक तरफ आप ट्यूशन फी लगा दो, उसके बाद मैं आपको 1-2 चीजें और बताऊंगा, तो आप टैब्यूलर फॉर्म में करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। सो इफ यू वांट आई कैन रिपीट। सर मैं एक बार फिर से फॉर्म में ये रेडी करता हूँ टेबुलर फॉर्म में। हाँ, आ, पहले आप कंट्री लगा दो सर, ठीक है सर। फिर आप वो लगा दो ट्यूशन फी, कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस लगा दो, फिर आप उसके बाद आप लगाओ जॉब सर्च वीजा। हाँ जी, ये 3 चीज लगा लेते हैं और फिर आप लगा दो ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, बस हो गया हमारा चार्ट रेडी। अब हम इसमें इनपुट दे देते हैं। जी हम सबसे पहले ले रहे थे नेदरलैंड्स, जी। खर्चा हमारा 60 लाख से 70 लाख। 60 to 70 lakhs। अब हमारा आता है जॉब सर्च वीजा, यहाँ तो है। इसमें आपने 3 years का बताया था ना? हाँ जी, हाँ जी, ड्यूरेशन 3 years और जॉब सर्च वीजा 1 to 3 years। 1 to 3 years। सर वो क्या होता है जॉब सर्च वीजा? मैं पहले एक बार टेबल खत्म करके फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ। दूसरा है हमारा कनाडा, 80 lakhs to 1.25 crores।
और यहाँ पर हमारा जो वो है ड्यूरेशन 4 years है। 4 years और जॉब सर्च वीजा 3 years। ठीक है सर। ठीक है, फिर आता हमारा यूके 1.25 to 1.5 crores, duration 3 years, job search visa 2 years। जॉब सर्च वीजा 2 years। 2 years। ओके। अब सिंगापुर, हाँ। सिंगापुर में अपना खर्चा आएगा 90 lakhs to 1 crore and duration 3 years, job search visa 0। ओके ठीक है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स भी आप लगा सकते हो, लेकिन वहाँ खर्चा बहुत ज्यादा आता है। सो यूनाइटेड स्टेट्स, इफ यू वांट टू लुक एट यूनाइटेड स्टेट्स, आपका ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का है और जो वहाँ खर्चा आएगा वो शुरू होता है 2.5 करोड़ से और ऊपर जाते जाते 4.5-5 करोड़ तक भी जा सकता है। सो जॉब सर्च वीजा 0 to 3 years। ठीक है, अब ये देखते ही ना मेरे हिसाब से आपके दिमाग में मोटा मोटा एक फिक्सेशन हो जाती है कि यार कहाँ अपन जा सकते हैं, कौन सी हमारी फीजिबल है और कौन सी नहीं है। जी जी। दूसरी बात, जो जॉब सर्च वीजा है उसका मतलब होता है कि कोर्स खत्म होने के बाद वो कंट्री आपको कितना समय देगी जॉब्स ढूंढने के लिए। हाँ हाँ मैं समझ गया। सो दैट इज जॉब सर्च वीजा। सो वहां सिंगापुर हमारे लिए फेल हो गया। यूएस भी एक तरीके से फेलियर ही है, क्योंकि बिजनेस जो कोर्स हम करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, हालांकि उस कोर्स में वो वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन उन्हें बाहर वालों की जरूरत नहीं है। जी जी जी। तो वो आपको रुकने नहीं देंगे। और अगर हम इंडियंस कहीं बाहर पढ़ने जाएं और वहां हम अगर 2 से 3 साल अगर हम रुक ना पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। सर या I'll wait। actually there is an urgent call, can I attend? प्लीज। Sorry sir, hello। आप हाँ। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ। सो मेरा कहना यह है कि यूएस हम तब जाए जब वो हमें रुकने दे। अब वो अंकल बिडन तो हमको रुकने देगा नहीं, ना हमको ग्रीन कार्ड देने वाला है, तो उसको छोड़ दो आप। सिंगापुर हमको वर्क नहीं करने देगा, उसको छोड़ दो आप। ठीक है, अब बचती है 3 कंट्रीज यहाँ पर, यूके, नेदरलैंड्स, कनाडा, ये 3 कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी यूके जैसा ही खर्चा आता है। और ऑस्ट्रेलिया का ही बताइए सर, मैं लिख लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया विल बी 3 year ड्यूरेशन। अच्छा। आपका करीबन 90 lakhs to 1.25 crores फॉर ट्यूशन फी, आई मीन कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस, सॉरी। और आपका सर्च वीजा है, सर्च वीजा इज 2 to 3 years। ओके ठीक है। ठीक है, तो ये आपका सिचुएशन है। सो अब आप थोड़ा सा इसको देख करके एक बार बताओ मेरे को कि व्हाट सीम्स टू बी मोर कंफर्टेबल। सर इन सभी कंट्रीज में ये कोर्सेज, ये वाला कोर्स जो है वो अच्छा है? हाँ मैम, इन सभी कंट्रीज में? मैम बेसिकली अभी हम सिर्फ कंट्री पहले डिसाइड कर रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इनमें से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमको टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह सारी यूनिवर्सिटीज तो अच्छी नहीं हो सकती। हाँ हाँ। यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जो अच्छी होंगी, तो हम पहले उनको टारगेट करेंगे। ठीक है, ओके। सो दैट इज हाउ इट इज। तो आप मुझे एक बार वो देख करके एक बार बताओ मेरे को कि वेयर डू यू थिंक यू विल बी कंफर्टेबल। सर मुझे एक चीज बताइए, कंफर्टेबिलिटी जो है ना, मेरे लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चा जब पढ़ के निकलता है तो जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में आईआईटी है, मतलब इंडिया में जो आईआईटी एक इंस्टीट्यूट जो है या आईआईएम्स है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा बेस्ट से बेस्ट पैकेज उसको गारंटीड है वो मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही बाहर कंट्रीज में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से पढ़ के हमें ये पता है कि हमारा बच्चा
Secured 100%, हाँ सिक्योर गारंटीड है कि उसको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा ही मिलेगा, उस पैकेज अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। सर क्योंकि अगर, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो ना, जी, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में कतई अप्लाई मत करना। नहीं नहीं मैं बेसिकली, नहीं नहीं सॉरी, मैं एक्चुअली डॉटर का, ठीक है वो एंटरप्रेन्योरशिप कह रही है, तो उस एंगल से मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही था कि भाई जो ये कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जब ये करके निकलते हैं बच्चे, तो एक होता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक होता है नॉर्मल, एक होता है भाई जिससे कोई एग्जैक्टली। उम्मीद नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी दी बेस्ट है जहां से निकल करके हमें पता है कि बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे आएंगे बच्चे, सो ये चीज। सो देखो, आप रिजल्ट्स किसको बोलते हो, दैट इज समथिंग दैट आई नीड। रिजल्ट इज कि भाई हाउ कॉन्फिडेंट माई चाइल्ड इज इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, ओके, दैट इज अ रिजल्ट फॉर मी। सो देखो, अगर आपको ये, आपने सोच लिया है कि इसने बिजनेस ही करना है, चाहे वो घर आकर फैमिली बिजनेस करे या अपना स्टार्टअप डाले या कैसे भी करे, लेकिन जॉब नहीं करनी है, इफ दैट इज क्लियर, then step into our entrepreneurship program, otherwise don't. आप जनरल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के बाद भी एक बिजनेसमैन बन सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद भी बिजनेसमैन बन सकते हो, और बिना पढ़ाई करे भी बिजनेसमैन बन सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल है ना। ये तीनों एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। बिल्कुल ठीक बात। सो दैट इज व्हाट माय आइडिया इज। अगर आप जॉब प्लस एंटरप्रेन्योरशिप दोनों अपॉर्चुनिटी खुला रखना चाहते हो, तो आप जनरल बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई कीजिए, जनरल जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। और अगर आपको नहीं कराना जॉब जिंदगी में कभी, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जाइए, ठीक है। तो ये क्लैरिटी ले लीजिए। अगर आप, जैसे क्लाइंट एक है कि शी वांट्स टू गो विद एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों की वो, तो यार बच्चे का इंटरेस्ट देखो ना। देखो बच्चे को हर चीज नहीं पता होता ना, आप हर चीज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ नहीं चल सर, सकते, आप दोनों ऑप्शंस लेके चलिए। एग्जैक्टली मैम बहुत सही कह रही है सर। कुछ चीजें ना, देखो उसके मन की इच्छा जरूर है, लेकिन हम ऐसा रास्ता ले सकते हैं जहां उसका मन भी पूरा हो जाए और सेफ्टी भी रह जाए। उसमें आपकी एक्सपीरियंस की हमेशा जरूरत पड़ेगी। सो आप और मैं ये जानते हैं सर कि कल इसका मन कब बदल जाएगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि बच्चा अभी 13, 14, 15 साल का है, अभी एक लॉन्ग जर्नी है सामने, ठीक है। सो उस बीच में कभी भी मन बदल सकता है, प्लान बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट सेंस वी शुड बी अ लिटिल मोर सेफ, ओके। सो इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूँ कि अंडरग्रेड में आपको जनरल बिजनेस पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आपका मन होता है कि यार मुझे बिजनेस ही करना है, देन इन दैट केस आप मास्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। आरजू, डू यू डिसएग्री विद दैट? No, sir. यू फाइन विद इट, राइट? क्या बोले, आपने सुना? सुना? बताओ। नहीं सर, शी इज नॉट क्लियर। अच्छा, मैं समझा देता हूँ। आरजू, मेरा सिर्फ कहना ये है कि अभी एक बार को अपन को लग सकता है कि यार अपन अपना बिजनेस करेंगे, अपना ब्रांड बनाएंगे या व्हाटसोएवर, लेकिन कल को हो सकता है ना कि अपना प्लान भी थोड़ा चेंज हो, है ना। तो अपन थोड़ा अगर सिक्योर चलेंगे ना, तो अपना नया प्लान के लिए भी जगह बना रहेगा और पुराने प्लान के लिए भी जगह बना रहेगा। कल को मन हो गया कि नहीं मैं पहले 2 साल जॉब करूंगा, उसके बाद मैं अपने बिजनेस का सोचूंगा। अब हमने क्या किया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चूज कर लिया जिसमें जॉब तो लगनी नहीं है, तो फिर तो अपन फंस गए। तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि अपन जनरल बिजनेस प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, उससे हमारे जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों अपॉर्चुनिटी खुले हैं। कल को तुम्हारा मन बना रहा कि नहीं मुझे अपना बिजनेस ही करना है, तो मत ढूंढो जॉब, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। और कल को मन हो गया कि नहीं यार पहले 1-2 साल करके देख लेते हैं कि होता क्या है बिजनेस, लोग संभाल कैसे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो पहले देख लेते हैं, फिर अपना शुरू करते हैं। सो वो ऑप्शन खुला रहेगा। यू गेट माई पॉइंट? Yes, What sir. do you think is more logical? Is it that you would still go for an entrepreneurship program only, or you would go for a general business management program? बताओ। भाई सुनो आरजू, अगर अपना बिजनेस करना है ना तो उनकी तरफ देखना बंद कर दो। डिसीजन बेटा आप खुद लो। तू गई क्यों नहीं? ठीक है, तुम डिसीजन खुद लो।
General business management program. Seems logical, is it? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, परफेक्ट. सो इफ यू लुकिंग एट जनरल बिजनेस, तो अब हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो यूनिवर्सिटीज हम मानते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं. अभी हमारे पास, चूंकि हम 11th में हैं आरजू, तो हमारे पास पूरे पूरे 2 साल का वक्त है इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने के लिए, इनके लिए तैयार होने के लिए. ठीक है, और इसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज की और एक लिस्ट हम बनाएंगे बाहर के यूनिवर्सिटीज की. ठीक है, इंडिया क्यों बना रहे हैं आरजू? हम रोकना नहीं चाहते तुम्हें, लेकिन आप जानते हो कोविड सिचुएशंस हैं, वॉर सिचुएशंस हैं कई जगहों पे, तो अभी कुछ भी हो सकता है. सो वी आर जस्ट टेकिंग अ बैकअप. ठीक है, प्रायोरिटी अब्रॉड है, नो डाउट. 1% अगर कल कुछ ऊपर नीचे हो गया, लेट्स से वर्ल्ड वॉर हो गया, तो फिर तो अपन कहीं नहीं जा रहे, अपन तो यही बैठेंगे फिर, है ना. सो तब अपन क्या करेंगे? पढ़ाई नहीं करेंगे? करेंगे. फिर तो इंडिया में ही पढ़ेंगे. तो उसका ऑप्शन रेडी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट मिनट में कुछ नहीं होगा. ठीक है. सो यू हैव joined class 11th in 2022 and you will join your college in 2024. सितंबर 2024 में जहां कहीं तुम्हारा कॉलेज हो वो चालू हो चुका होगा. अगर विदेश हुआ तो अगस्त 2024 you would have taken your flight to your university. मैंने जानबूझ के बीच में बैठे हुए इंसान के लिए ये लाइन मारी थी. आप तैयार हो जाइए. अगर ऐसा हुआ तो अगस्त 25 2024 के आसपास ये निकल जाएगा. सर जाए, अच्छी बात है. हाँ, सो मेंटली आपको तैयार होना है, बिकॉज योर प्रोबब्ली फर्स्ट चाइल्ड इज गोइंग, सो इट कैन बिकम अ लिटिल ट्रॉमेटिक फॉर यू आल्सो. ओके, आजकल कुछ पेरेंट्स साथ में भी चले जाते हैं, आप देख लीजिएगा. वैसे हम कनाडा भेजे तो हमारे लिए बहुत फायदा है, क्योंकि आरजू को वहां पर ना परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं. वो कैसे सर? मैम एक्चुअली कनाडा में ना दुनिया का फास्टेस्ट परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है. तो अगर हम कनाडा जाएंगे तो वो प्रोग्राम जो हमें देंगे वो 4 साल का है. हर साल हमको पॉइंट्स मिलते हैं पीआर के लिए. प्लस कैनेडियन प्रोग्राम में क्या होता है, वो हमको ना इंटर्नशिप्स कराते हैं, जो कि फुल टाइम वर्किंग होता है, 8 से 10 घंटे का. तो आप अपना एक सेमेस्टर पूरा काम करते हो, फिर अगले सेमेस्टर पढ़ते हो, ऐसे करके. सो 24 महीने तक का आप वर्क एक्स लेकर के फिर मार्केट में उतरते हो कि अब मुझे जॉब ढूंढना है. सो जितनी बार आप इंटर्नशिप करते हो तब भी आपके पॉइंट्स ऐड होते हैं. फिर क्या होता है कि आपको वो देते हैं 3 साल का वक्त कि ढूंढो जॉब. मतलब इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें जॉब ना मिले तुम्हारे पास वक्त है 3 साल का. 3 साल में तो मतलब अच्छे खासे पॉइंट हो जाते. जॉब मिल जाए. ठीक है, तो 3 साल का वक्त दिया है, जॉब ढूंढो. जैसे ही आप जॉब ढूंढ लेते हो, जिस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, आपके पॉइंट्स फिर से लगने शुरू हो जाते हैं. जिस दिन जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जिस दिन वो कंप्लीट हो गया, आपके हाथ में परमानेंट रेसिडेंसी आ जाएगी. और नॉर्मली हमने कैलकुलेशन देखा है कि 4 साल की पढ़ाई और 2 साल का वर्क एक्स, आपका परमानेंट रेसिडेंसी आ जाता है. ओके. सो परमानेंट रेसिडेंसी का मतलब होता है अब आप कनाडा में जमीन खरीद सकते हैं, अब आप कनाडा में घर बना सकते हैं, आपके मम्मी पापा जो आप पे डिपेंडेंट है वो कैनेडियन सिटीजन बन सकते हैं. ठीक है, आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा कैनेडियन सिटीजन होने का. ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं जो वहां के सिटीजन की होती है, वो सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं. सिर्फ एक चीज आप नहीं कर सकते हो, वो है आप वहां वोट नहीं डाल सकते. बाकी आप सारी चीजें कर सकते हो. अगर आपको वोट डालना है उसके लिए आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, तब तक आपको वेट करना होता है. ठीक है, और जब आपको ग्रीन कार्ड मिलता है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी होती है और आप सिर्फ वहां के सिटीजन बन जाते हो. तो अभी आप दोनों कंट्रीज में सिटीजन हो. वहां आप कैनेडियन सिटीजन कहलाओगे, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं उसको, जो विदेश रहते हैं, मतलब देयर इज सम टर्मिनोलॉजी. सॉरी, एनआरआई. एनआरआई. या, सो यू आर एन एनआरआई नाउ. ठीक है आरजू, अच्छा लगेगा एनआरआई लगाता हुआ आपने नाम किया गया, नॉन रेसिडेंट इंडियन. पता है इंडिया में एनआरआई का मतलब क्या होता है? एनआरआई वाला अंकल या आंटी जब भी इंडिया आए बहुत सारी गिफ्ट लाए होंगे.
पहली, उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, बस इंडिया में एनआरआई का यही मतलब होता है एक्चुअली। ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज। तो ये बेसिक फंडा है। देखिए, चूंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का शायद ये जो बाहर वाला इंटरेक्शन है ये शायद पहला बार हो रहा है। पहली बार। हाँ, सो इसलिए मैं बहुत डिटेल्ड में जा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। और कई बार क्या होता है ना, हमारी इंडस्ट्री में ना लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कई बार देते हैं, तो उससे ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज आपको जो अभी मिल रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, एंड यू कैन नोट डाउन एज मच एज यू वांट टू। बाद में रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो वो तो हम भेजेंगे। सो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज का 4 साल का प्रोग्राम अगर हम टारगेट करना चाहें तो हमें 2-3 चीजों का जरूरत पड़ेगा। पहली चीज, मार्क्स। 11th एंड 12th बेटा रगड़ देना, नथिंग लेस देन 85 to 90%। 11th एंड 12th दोनों साल कंसिस्टेंटली, ठीक है। और थोड़ा और ज्यादा होगा तो कुछ यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी आएगी, ठीक है। So one of my student has just gone to Canada's best university, which is known as University of Toronto. ठीक है, that is Canada's #1 university. उसकी फीस है कोई 36,000 कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है, पर ईयर। उसको 1,20,000 कैनेडियन डॉलर्स का स्कॉलरशिप मिला है, जो कि 4 साल में उसको टोटल मिलेगा। यानी कि पापा को उसके सिर्फ 6,000 कैनेडियन डॉलर हर साल देना पड़ेगा। समझ रहे हो? सो परसेंटेज कितना था उसके पास? 96.5% मार्क्स थे उसके, तो उसके आए 1,20,000 कैनेडियन डॉलर, ठीक है। तो ये हो सकता है, नॉट एट ऑल द यूनिवर्सिटीज बट एट फ्यू प्लेसेस, ठीक है। सो वहां की जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज है, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो #1 है, दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, WATERLOO, ठीक है। और तीसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, UBC, ठीक है। सो ये 3 उनकी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो काफी अच्छी हैं, जैसे कि यॉर्क यूनिवर्सिटी, YORK, फिर एक यूनिवर्सिटी है मैकमास्टर, MCMASTER, मैकमास्टर। तो ये उनकी सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है, ठीक है ना। ये सारी यूनिवर्सिटी से कनाडा की है ये सारी कनाडा में है, ठीक और है। मेजरली मैंने अभी आपको जो बताया है उसमें UBC ही है जो ओंटारियो, यानी कि जो उनका कैपिटल सिटी है उससे बाहर है। ओटावा उनका कैपिटल सिटी है, सॉरी, पर ओंटारियो उनका सबसे पॉपुलर सिटी है। तो ओंटारियो से बाहर सिर्फ UBC है। UBC इज इन ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर कहते हैं उस एरिया को। तो UBC वहां है, और ये बाकी सारे यूनिवर्सिटीज ओंटारियो में है। ओंटारियो में ही हमारा पॉपुलर सिटी टोरंटो भी है, जहां सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं, ठीक है। सो मेनली वैंकूवर जो है वो बाहर है? नहीं, बाहर नहीं है मैम। बेसिकली वहां कनाडा में ना काफी सारे प्रोविंसेस हैं। सो एक प्रोविंस है ओंटारियो, एक प्रोविंस है लेट्स से वैंकूवर, UBC, आई मीन ब्रिटिश कोलंबिया, एक प्रोविंस हो गया अल्बर्टा, फिर एक प्रोविंस हो गया क्यूबेक। ऐसे करके बहुत सारे प्रोविंस है। जैसे हमारे यहाँ मैम पता ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब स्टेट्स, तो उनके यहाँ बोलते हैं प्रोविंस, ओके। ठीक है। तो अब ज्यादातर लोग इंडिया से जो जाते हैं वो ओंटारियो को टारगेट करते हैं, और फिर थोड़े बहुत लोग, मतलब वैसे तो काफी ज्यादा लोग टारगेट करते हैं वैंकूवर को। वैंकूवर में थोड़ा रहना खाना थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव है, ठीक है। वैसे ओंटारियो में भी कोई खास सस्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कम है। वैंकूवर में काफी ज्यादा। जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है वो और ओंटारियो में? ओंटारियो में है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, मैकमास्टर, ये तीनों यूनिवर्सिटी ओंटारियो में है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू भी ओंटारियो में है। ओके। और जो UBC है दैट इज इन वैंकूवर? वैंकूवर में, ओके। ठीक है। सो वैंकूवर में 2 ही यूनिवर्सिटी फेमस है, एक साइमन फ्रेजर और एक UBC। बाकी ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो फेमस है वो ओंटारियो में है।
फिर अलग अलग प्रोविंस में कुछ कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अल्बर्टा का यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा बहुत अच्छा है, फिर कैलगरी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, ऐसे करके कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन इन सब के मैनेजमेंट कोर्सेज अच्छे हैं। मैम कनाडा में बिजनेस और कंप्यूटर साइंस ये 2 कोर्स सबसे अच्छे पढ़ाए जाते हैं। बिजनेस, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स, ये 3 कोर्सेज सबसे फेमस है कनाडा में। बिजनेस, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स। लोग यही 3 चीज सबसे ज्यादा पढ़ने जाते हैं कनाडा में। अच्छा। सो इसको पढ़ने के लिए एक तो हमको नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि मेम साहब आपको लाने हैं, ठीक है। दूसरा, आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं IELTS, IELTS। वो हम लिखेंगे अगले साल, ठीक है, समर वेकेशन के दौरान, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, टाइमिंग मिस ना हो जाए। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि आपका बैच सितंबर 2024 में स्टार्ट होगा, तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताइए आरजू कि उसके लिए हमें एप्लीकेशन कब करना पड़ेगा। ये आरजू की आदत है कि हर बार जो है मम्मी की तरफ मुड़ कर आंसर ढूंढो। बेटे आंसर तुम बताओ, कब गलत एप्लीकेशन? बताओ चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो वन इज जजिंग यू हियर। फाइनल एग्जाम से पहले एप्लीकेशन देनी होती है। फाइनल एग्जाम से पहले, ओके, फाइनल एग्जाम से पहले का मतलब कौन सा महीना हुआ? दिसंबर टाइम। ओके, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट डेट। 1 सितंबर को पूरे दुनिया की लगभग सारी यूनिवर्सिटीज अपना एप्लीकेशन विंडो खोल देती है, यानी कि हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और मेजरली 15 जनवरी को लगभग सारी यूनिवर्सिटीज बंद होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो 1 सितंबर 2023 टू 15 जनवरी 2024 के अंदर अंदर हमको अप्लाई करना है। इज दैट ऑल राइट? राइट। अब वो लोग क्या देखेंगे एडमिशन लेते वक्त? एक तो तुम्हारे मार्क्स देखेंगे, दूसरा तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोफाइल देखेंगे, यानी कि तुमने कोर्सेस, यानी कि लेट्स से सीबीएसई के बाहर जाकर आउट ऑफ इंटरेस्ट तुमने कितनी चीजों पे पढ़ाई की है, बिजनेस के अराउंड कितने कोर्सेस किए हैं, कैसे वो लोग ये पता लगाएं कि तुम्हें बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, कैसे वो लोग पता लगाएं कि तुम बहुत एनर्जेटिक एक इंसान हो, कैसे ये पता लगाएं कि तुम्हें पढ़ाने से दुनिया का भला होगा। ये सवाल उनके दिमाग में सबसे बड़ा होता है जब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं। तो हमें ये सब अगले 2 साल में कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हमें करने पड़ेंगे जिनसे हम ये बातें प्रूव कर सकें। That's why people who want to go abroad start working on their profile, and they go and do probably internships with a lot of organizations, even though they are school students. They might just go and do some community service or social work. They might write research papers. They might participate in several competitions. They might try to be in their school council. They might try to be the school prefect. They might try to be a school captain. And they do a lot of other things in order to prove, or in order to bring up a resume which is far different than the rest of the candidates. And that is the fun of applying abroad. मैं कहता हूं 1% चांस है कि नहीं होगा, नहीं भी होगा ना तो तब तक तुम्हारा रेज्यूमे ऐसा स्ट्रांग बन जाएगा कि इंडिया में भी तुम्हारे एडमिशंस में फर्क पड़ने लग जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ थिंग्स, राइट। सो कनाडा का यही तरीका है। और ये जो सारी एक्टिविटी है कि लेट्स से मुझे तुमसे कोई कॉम्पिटिशन्स करवाने हैं जो बिजनेस के अराउंड है, लेकिन कोई बिजनेस आइडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस है यूएस में, तो वो लोग कराते, तो वो मुझे अगर कराना है तो मैं तुमको एक मेंटोर दूंगा, वो आपको इस कंपटीशन के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे कि इस कंपटीशन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप उस चीज को करोगे और जाके आप पार्टिसिपेट करोगे, और ये पार्टिसिपेशन आप ऑनलाइन करोगे, ठीक है। फिर हम ही आपको बताएंगे कि यार आरजू आप ना ये वाला सोशल वर्क करो, आप इन लोगों की मदद कर सकते हो। तो अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ इन लोगों की मदद करने से आपको शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, तो आप कर लो। So then we will tell you how to go about it, right? So that is how it works. ठीक है? So it's a mentor-led kind of a thing. तो एक तो हो गया कनाडा। दूसरा जो नेदरलैंड्स वाली यूनिवर्सिटीज है, जहां सर आपने देखा होगा कि खर्चा काफी कम है,
तो इन यूनिवर्सिटीज का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है उसमें 2 तरीके होते हैं। 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जिनका एंट्रेंस होगा, बाकी 2 ऐसी होंगी जिनमें एंट्रेंस के बिना एडमिशन होगा। ठीक है। सो कुछ टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में बता देता हूँ नेदरलैंड्स में, जो आप लोग चाहो तो गूगल करके चेक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम, that's one of the most beautiful places in the entire world. वहाँ के फ्रूट्स और वहाँ का नेचर, 2 चीजें बहुत फेमस है वहाँ पर। सर ये तो बहुत चिली एरियाज है नीदरलैंड। मैम ठंड तो हर जगह ही मिलेगा आपको। हाँ ऐसे तो कनाडा में भी बहुत ठंड है। कनाडा तो और ज्यादा मिलेगा ना। हाँ यहाँ तो फिर भी समर सीजन होता है, कनाडा में समर सीजन ऑलमोस्ट नील बराबर है। ठीक है। हाँ। सो वो टेंशन नहीं है, क्योंकि मैम इंडिया की तरह नहीं होता ना, वहाँ हर चीज ना एयर कंडीशनड होती है। जैसे बस भी, आपका कॉलेज भी, आपका घर भी, सब एयर कंडीशनड होता है। सो बाहर बर्फ पड़ रहा होता है। ठीक है। सो आई हैव माय जूनियर कलीग स्टेइंग देयर राइट नाउ, शी इज गॉट मैरिड इन कनाडा। सो बाहर बर्फ पड़ रहा है, मेरे से वीडियो कॉल पे बात हो रही है और वो शॉर्ट्स में घूम रही है। मैंने कहा तुझे ठंड नहीं लग रही? कह रहे सर क्या ऐसी बातें करते हो, एयर कंडीशन चल तो रही है, हाउ डज इट मैटर व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड, दैट्स फन। इंडिया में अपन क्या करेंगे, अपन एसी लगाएंगे ठंडा करने के लिए, पर एयर कंडीशनर नहीं लगाते हम। वो लोग सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग लगाते हैं। दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द टेम्परेचर। हाँ थोड़ा बहुत जो बाहर जाने के लिए होता है उसके लिए आपको हेवी क्लोथिंग आपको यूज करनी पड़ती है। सो दैट्स हाउ। सो नेदरलैंड्स में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम हो गया। फिर आप यूज करेंगे दिस प्लेस कॉल्ड एरास्मस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एरास्मस। वर्ल्ड टॉप Spell रैंक, it, sir. Can you spell this Erasmus? ERASMUS। Okay, sir. ठीक। वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में काफी हाई है दोनों ये यूनिवर्सिटीज। काफी मुश्किल है एडमिशन, एंट्रेंस देना पड़ेगा दोनों के लिए। ठीक है। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी होगी जैसे कि ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी, GRONINGEN, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी, GRONNIN। INGEN। शायद मैं गलत हूँ स्पेलिंग में, आप गूगल पे चेक कर सकते हो। ग्रोनिन। सॉरी, GRONIN GEL। ओके। ग्रोनिंगन। और तो ये इनके टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा और भी 5-6 यूनिवर्सिटीज और है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले 2 यूनिवर्सिटीज में एग्जाम होगा, बाकियों में एग्जाम नहीं है। तो एग्जाम भी जो होगा वो मैथ्स का होगा। ठीक है। और वो हमको इंडिया में बैठकर ही देना है। इनके लिए भी परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा प्रोफाइल में सोशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है नेदरलैंड्स के लिए। सो अब से कंसिस्टेंटली हमको सोशल वर्क जरूर करना है। और उसमें ये जरूरी नहीं है कि कोई एनजीओ जाके ज्वाइन कर ले या पापा एनजीओ से सर्टिफिकेट ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमें कुछ अपना स्टार्ट करना है, सेल्फ इनिशिएटिव। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, वो दिल्ली हाट गई, वहां पर उसको मुलाकात हुआ उसका कुछ आर्टिस्ट से जो राजस्थान से आए थे। और ये ऐसे आर्टिस्ट थे जो बहुत अच्छा स्किल रखते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं की है, स्कूल नहीं गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में हर इंसान इनको बेवकूफ बना लेता है। जो चीज 5,000 10,000 की बिकनी चाहिए वो 500 में बिक रही थी। तो उसे बड़ा बुरा लगा। वो आई तो हमने तब उसको बोला हुआ था कि कोई प्रॉब्लम ढूंढो जिसको हम एड्रेस कर सके। तो उसने बोला सर ये मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा, तो इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमने मिलकर, दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, मतलब उसके मेंटोर ने और उस लड़की ने मिलकर, कि हम एक ऑनलाइन आर्ट गैलरी बनाते हैं जो कभी बंद नहीं होगा। नॉर्मली आप देखते हो आर्ट गैलरीज कुछ समय के लिए खुलते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ये 24/7 चलने वाला आर्ट गैलरी है। ठीक है। और उसने उन आर्टिस्ट से बात कर ली, उसके उनके कुछ कुछ कामों का फोटोग्राफ लिया और उनको अपलोड कर दिया। आप मानोगे नहीं, जो हमारी पहली पेंटिंग बिकी थी ना, 55,000 रुपीज की बिकी थी। हम इतने एक्साइटेड हुए, हमने उसके अगले फ्राइडे एक ऑनलाइन बिडिंग बनाई। सिर्फ फ्राइडे 5 से 8 3 घंटे में वी मेड 1,80,000। और इसमें से सिर्फ 10% पैसा हम वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए रख के, बाकी सारा पैसा
उन आर्टिस्ट को वापस कर देते हैं। आज की डेट में राजस्थान का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां से हमारे पास आर्टिस्ट नहीं है। आप लोग चाहे तो ये वेबसाइट देख सकते हैं, इसका नाम है artgully.com। Delhi.com। artgully.com। सर ये पेंटिंग्स जो है आप किसी की भी डाल देते हैं इसमें, इस वेबसाइट पे? मैम वो आर्टिस्ट हमारे साथ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट पे होता है, अच्छा, तब हम Actually, why she is asking, because Arzu is a fantastic painter. अच्छा, he is वंडरफुल। very good in painting. If you like to तो आप see मुझे एक बात बताओ, हम्म। हम ऐसा क्यों नहीं करते फिर कि डिजाइन प्लस बिजनेस प्रोग्राम ढूंढे? तो सर इसने स्टार्टिंग में यही बताया था। this, ये हम कर सकते हैं। यूके में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, University College London। UCL। वहां पर हमको इस तरह का कोर्स मिल जाएगा। फिर हमको मिल जाएगा ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट। यूके में ही सर? मैम दो, अभी मैं आपको और यूनिवर्सिटी बताता हूँ। अब हम एक ऐसे कोर्स में बात कर रहे हैं जिस कोर्स में मेरा बच्चा कभी भी स्कॉलरशिप के बिना नहीं गया है, डिजाइन। ठीक है, सो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त मेरे पास इस साल 3 बच्चे हैं जो सेम डिजाइन प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। ओके, डिजाइनिंग प्लस मैनेजमेंट। बिजनेस। हाँ, business। बिजनेस। ओके, सो UCL हम अपना अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी आर्ट्स लंदन में हम अप्लाई कर सकते हैं, ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेजर यूनिवर्सिटी है यूके। इसके अलावा और 2-3 यूनिवर्सिटीज है जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है यूके में। यूके में एक आपने बताई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। एक है यूनिवर्सिटी आर्ट्स लंदन अच्छा अच्छा, ओके, यूनिवर्सिटी आर्ट्स लंदन। और एक है ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है 3 हो सर। गई। राइट। अब हमारे पास यूनिवर्सिटी भी बताई थी, सॉरी कार्सन यूनिवर्सिटी। मैम, वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। तो मैं आता हूं उस पे। वर्ल्ड नंबर 2 है वो पार्सन्स। पार्सन्स का एक पर्टिकुलर स्कूल है दैट इज कॉल्ड न्यू स्कूल ऑफ डिजाइन। उस न्यू स्कूल ऑफ डिजाइन में पर्टिकुलर प्रोग्राम है आपके लिए दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है मैम, इसमें ना बिजनेस और डिजाइन दोनों का मिक्सचर होता है कि डिजाइन बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकता है। सर वो तो वो हो गया ना कि आप लोगोस वगैरह नहीं? नहीं, बहुत वे बियॉन्ड है ये, बहुत वे बियॉन्ड है। आप अभी नहीं सोच पा रहे हो इसको। आपने फेसबुक देखा है ना? हाँ हाँ, फेसबुक ऐसा क्यों दिखता है जैसा वो दिखता है? ये प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट। समझ रहे हो? Why do you see that Facebook is in blue and white? Why not any other color? Why does Facebook allow you to upload all the uploads that you want to upload? Why does it not allow you to upload any other app pictures or any other app based application? There are reasons for it. Okay, and one has to learn that. क्योंकि आने वाले कल में ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सब कुछ टेक्निकल होने वाला है और उस टेक्नोलॉजी में आपको अगर सरवाइव करना है तो डिजाइन, टेक्नोलॉजी और बिजनेस, ये तीनों चीज आपको समझना होगा। सो दिस इज व्हाट द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। एक्चुअली सर ये लेटेस्ट जो है वो यही सब चीजें जा रही है कि डिजाइन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर रोज चेंज हो रही है। एग्जैक्टली। सो हम इस वाले प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन टेक टाइम इन डिसाइडिंग। अभी आज रात को पूरी दुनिया नहीं हमको बना लेनी है, हम आराम से चीजों को कर सकते हैं। सो हम जब काम करते हैं किसी के साथ तो वी गिव यू टाइम, प्लस हमारे पास ना टीम में 2-2, 3-3 साइकोलॉजिस्ट है। सो वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपको एडवाइस देते हैं, काम देते हैं। और एक चीज होती है काउंसलिंग करना, दूसरा चीज होता है बच्चे को काम दो और फिर उसका रिएक्शन देखो। इससे सबसे अच्छा समझ में आता है कि इसको मजा आया या नहीं आया। जिस चीज में मजा आने लग जाएगा ना फिर वो पकड़ लेगी अपने आप। और सबसे ज्यादा मजेदार होता है जब बच्चा अपनी चीजें खुद डिसाइड करता है। ना मैंने डिसाइड की ना आप दोनों ने डिसाइड की, उसने बोला मैंने ये डिसाइड किया है,
उस दिन हम जंग जीत गए, एज पेरेंट्स एज काउंसलर्स हम जंग जीत गए कि हमारा बच्चा खुद डिसीजन लेने लग गया है, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू अराइव एट। सो चलो थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज आपको मैं थोड़ा और घुमा देता हूँ। पार्सन्स तो यूएस में है, ठीक है, खर्चा ज्यादा है, लेकिन वहां स्कॉलरशिप भी है। कितना मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन मिलता है। जनरली मैंने देखा है मेरे हर बच्चे को मिला है, और वो मेरी वजह से नहीं मिला है। वो एक पोर्टफोलियो सबमिट करना होता है वहां पे, उस पोर्टफोलियो के वजह से उनको मिला है कि आप कितने प्रिपेयर्ड ऑलरेडी आ रहे हो, उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिला है, राइट। आपके ही काउंसलर ने हमें वही सजेस्ट किया था कि पासन है, आप पासन उसकी साइड देखिए, तो वो भी आप, तो वो आप देखो, फिर आप देख सकते हो देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड FIDM, ठीक है। यूएस में ये सही है? हाँ ये भी यूएस में है, FIDM। तो ये सब स्कॉलरशिप के बिहाफ पे होता है यहाँ पे एडमिशन? स्कॉलरशिप देखो, you can calculate scholarship will be anything between 25 to say 50%, 60% at max. Remaining खर्चा हमारी जेब से जाएगा। तीसरा यूनिवर्सिटी है SCAD, SCAD, बेसिकली सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, ठीक है। ये 3 बड़े यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे कैल आर्ट्स है, कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ आर्ट्स, कैल आर्ट्स बोलते हैं हम उसको। तो यूएस में थोड़ा ना वो टर्मिनोलॉजी का स्टाइल है थोड़ा सा, जैसे मैं कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ आर्ट्स बोल सकता था, लेकिन मैं बोलूंगा कैल आर्ट्स, ठीक है। क्यों? ताकि यू नो इट्स द वे, सो ताकि आपको पता लगे कि हमें पता है। सो ये तरीका है, कैल आर्ट्स बोला जाएगा। तो ये तू सीख ले, मतलब दोस्तों को भी बताना तो ऐसे बताना, कैल आर्ट्स, कैड, FIT, FIDM, पार्सन्स। पार्सन्स जब बोलोगे तब देखना लोगों का रिएक्शन देखना है। जिसको नॉलेज होगा ना, उसको तुमने बोला ना पार्सन्स, वो 10 माले की बिल्डिंग से छलांग लगा लेगा उसी टाइम। तो मतलब इतना जबरदस्त यूनिवर्सिटी है वो, इतना जबरदस्त यूनिवर्सिटी है वो। इट्स वर्ल्ड नंबर 2 फॉर डिजाइन, ठीक है। सो अब इन सब का ना रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। इन सब का रिक्वायरमेंट है पोर्टफोलियो। डिजाइन स्कूल में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पोर्टफोलियो चाहिए, ठीक है। सो जो तुम्हारे आर्ट पीसेस बने हुए हैं और जो तुम इन 2 सालों में बनाओगी, वो ऐसे प्लानिंग के साथ बनाना है कि वो पोर्टफोलियो में शामिल हो जाए, ठीक है। और तुम्हें क्या बनाना है, किस तरह की चीजें चाहिए, किस तरह उनको प्रेजेंट करना है, ये बताने का काम हमारा है। लेकिन इन आर्ट पीसेस को बनाने में तुम्हारी मदद हम नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम नॉट अ आर्टिस्ट। तो थोड़ा सा आर्ट स्कूल आपको शायद जाना पड़े, ठीक है। इसने ज्वाइन किया हुआ है सर? कहाँ ज्वाइन किया आपने? तो वो पंकज सर फाइन आर्ट्स अकेडमी है। सॉरी कौन सा? पंकज सर फाइन आर्ट्स अकेडमी। उनसे एक बार आप बात कर लेना कि सर आपको पता है कि पार्सन्स में जाने के लिए किस तरह का पोर्टफोलियो चाहिए होता है। मैम ये आप लोगों को थोड़ा सा बात करना पड़ेगा उनसे, क्योंकि अगर उनको नहीं पता होगा ना तो चीजें गलत हो जाएंगी। अगर नहीं पता होगा तो आप मेरे से बात करा देना, ठीक है। तो मैं शायद उनको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि क्या चाहिए होता है वहां पर, ठीक है। मेरे को जहां तक उम्मीद है उनको शायद पता ही होगा कि वहां क्या चाहिए होता है। तो आप उनको ये साफ बोल देना कि हमें वहां भेजना है, आप उस हिसाब से तैयारी रखो। सर आपका इफ यू डोंट माइंड आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है हमको? हाँ सर, इट इज 931। मैं सेव कर लेता हूँ सर एक मिनट। 931 99 हाँ 931 99 87 8744। जी। Can I give you a call हाँ हाँ श्योर, so that you may save my number for future? I've got the bus sir. Last 275, no? Right sir, I've got the bus. My name is Vishal Singhal. Right sir. And may I know your good name, sir? Ritesh Jain sir. So ये तो कुछ यूनिवर्सिटीज यूएस में है, कुछ यूनिवर्सिटीज कनाडा में भी है, जहां पर बहुत अच्छे बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं, तो वो भी अपन देख सकते हैं।
और बिजनेस के साथ मिलाकर देखना चाहोगे तो कनाडा में थोड़ा मुश्किल होगा, वहां पर या तो फाइन आर्ट्स होगा या बिजनेस होगा, मतलब सेपरेट सेपरेट होता है, कंबाइन करना मुश्किल है। यूके और यूएस में फिर भी हम कंबाइन कर सकते हैं। सर जो आप डिजाइनिंग बोले वो एक ही डिजाइनिंग है या जैसे डिजाइनिंग ग्लोबल डिजाइनिंग होती है या ओवरऑल इट्स नॉट स्पेसिफिक डिजाइन, जैसे फैशन डिजाइन होता है, टेक्सटाइल डिजाइन होता है, इंटीरियर डिजाइन होता है, ऐसा प्रोग्राम नहीं है ये। देन इसमें कम्युनिकेशन डिजाइन भी होगा, विजुअल डिजाइन भी होगा, इंटरेक्शन डिजाइन भी होगा, गेम डिजाइन भी होगा। मतलब ये जो डिजाइन है बेसिकली तुम्हारे बिजनेस को और एनहांस करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप शूज के बिजनेस में है, ठीक है, और अच्छा आप क्यों हंसे? ये बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे बताती है कि हाँ मुझे इस चीज में कि हाँ ये भी ये ऑप्शन है, अच्छा, ऐसे है, तो जब तो उसमें शूज का भी मुझे एक ऑप्शन बताया। एग्जाम्पल होता है ना, ये बहुत लाइव होता है। लेट्स से शूज के डिजाइन बिजनेस में हो, अब क्या होता है कि आपको वो शूज प्रमोट करने हैं, आपने एक कार्टून फिल्म बनाई जहां पर आप रनिंग दिखा रहे हो, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल हु आर फैट टू गो एंड रन ऑन द स्ट्रीट्स, राइट? अब आप कैसे करोगे इसे? बेसिकली आपको ऐसे प्रोग्राम में डाला गया है जहां पर आपको स्क्रिप्ट भी पता है, पिक्चर भी पता है और तरीका भी पता है। सो दैट इज व्हाट द प्रोग्राम इज अबाउट। ओके, सो आप चाहो ना, आप एक बार स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट पार्सन न्यू स्कूल ऑफ डिजाइन ये गूगल करके देख लेना, आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट न्यू स्कूल ऑफ डिजाइन। स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट। अच्छा, आज मुझे लगता है कि हमने ना इनको जितना ज्ञान दे दिया है आरजू को, इससे ज्यादा हम देंगे ना तो इसका ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। आज हम यहीं पे रुकते हैं और एक दिन का समय लेते हैं कि अभी जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसको आप अब्सॉर्ब करें। उसके बाद अंजलि आपसे फिर कल बात करेगी, करके हम अगली मीटिंग मंडे या ट्यूसडे जैसे भी होगा, मंडे तो हम नॉर्मली ऑफ पे होते हैं, तो ट्यूसडे हम फिर से आपसे बात करेंगे और फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है? और probably if you want we can do it on Sunday also, that's your call. मैं ऐसा सकता है जैसे So I think Sunday will be better, Sunday better है ना? as actually Tuesday happens to be my working day. हाँ, so Only I get late. so Sunday करते हैं, संडे हम लोग अर्ली मॉर्निंग में रख लेंगे, अंजलि रख लेगी अपना, फिर अपन आराम से बैठ के बातें करेंगे, No problem, sir. ठीक है? Right, sir. Anything that you want to ask? यस सर। सर जो डिजाइन और मैनेजमेंट का कोर्स है ऐसा हो सकता है कि वो अंडर ग्रेजुएट में हो और फिर ग्रेजुएट में एंटरप्रेन्योरशिप हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अभी मैं आपको जो डिजाइन प्लस मैनेजमेंट कोर्स बोल रहा हूँ ये अंडरग्रेड कोर्स है, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता आरजू, कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। Okay. चलो, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. सर।